Welcome to the fantastic show, which is presented by Happy Biz, and I'm your host, Ruchi. And today, I have two very extremely talented women with me. One is an author, writer, poet, and another is an acupressure and Sajog therapist. A very warm welcome to Shraddha Ahuja Ramani and Nimisha Amrutia. Shraddha, our today's celebrity guest, is a multifaceted personality known for her contributions to literature and education. She's the president of a renowned Ahmedabad book club. She has received many laurels, including awards the Best Author Usha Udgam Parv Award and the International Women Achievers Award. Her popular books include A Beautiful Mess, Smruti, and Saptamoksh. A Beautiful Mess is an Amazon bestseller and has received several awards. And with her is a very beautiful Happy Biz member, Nimisha Amrutia, who is a dedicated acupressure and a Sajog therapist with a passion for holistic healing and wellness. श्रद्धा जी, कितनी साड़ियाँ हैं आपके पास? उसके बाद बनारस से हमने करीबन 25 करीब लाए हैं। तो आपकी कोई ऐसी कहानी है कि आप कैरेक्टर्स को मिलने नहीं देते? कई बार जैसे कैसे अधूरा ज्ञान वो बहुत खतरनाक होता है। हम सब थोड़ी देर में ऑथर राइटर बन जाएंगे। मेरी खुद की हिंदी इतनी क्लीन हो रही है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो। बट यस, देयर आर पीपल हु से कि तुम रेप्स के बारे में बात मत करो। बट रेप हो रहे हैं तो बात तो करनी पड़ेगी। मुझे किसी ने सताया है, मैं लिखूंगी वो चुड़ैल है। मैं नहीं बताऊंगी वो देवी है। Well, this is the very transparent and very upfront Shraddha. I like that. Wow, brilliant you are. Thank you. I'm the host of the show. I have to be brilliant. Oh, yes. ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो. The way you are taking all these women together and the community which you are creating is actually a much needed thing in this time. But everybody is smiling. I've never seen any Happy Biz member not smiling because broader smile वो पूरे 32 दांत के साथ में रहते हैं. So, welcome to the fantastic show which is presented by Happy Biz. I'm your host Ruchi, and today I am so glad and excited to tell you all the very beautiful guest which I have today on the show. Meet Miss Shraddha Ramani and Happy Biz की बहुत ही beautiful member Nimisha Amrutia. Thank you. Both of you very welcome to the show. Thank you so much. Thank you for having us here. श्रद्धा जी, कैसा फील कर रही हैं आज आप यहाँ आकर? बहुत अच्छा. आपको देखने के बाद तो मुझे लगता है सबको अच्छा ही लगता होगा. तो मैं तो काफी देर से आपको देख रही हूँ तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. ऐसा, और सब हमारे व्यूअर्स ये जानते हैं that श्रद्धा is a very beautiful poet, author, writer. मतलब इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है श्रद्धा. तो कभी करते? नहीं, कम से पेट कहाँ भरता, हमेशा it should be ज्यादा. तो श्रद्धा, we will start with the today's show. उसमें मैं सबसे ज्यादा जिज्ञासु हूँ ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली श्रद्धा है कौन? Who is श्रद्धा? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं खुद को तलाशने की जिद में लग निकली हुई. क्या बात है. लगभग 12 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को ढूंढने की तलाश करती हूँ. कर क्या रही हूँ वो तो पता लगाओ. एंड आई डू नॉट. अब श्रद्धा टेक्निकली देखो तो बहुत she is a married woman, mother of 2 children. I'm a mother of a 20-year-old boy. My daughter is 16. Mhm. I'm an educationist. I've done my 5 masters. I am a teacher. I am an author of 10 books. I am a poet. I am president of Ahmedabad Book Club. I wear a lot of hats, but the most beautiful identity of mine is that मैं श्रद्धा हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ.
क्या बात मैं है। कभी किसी से जाके नहीं पूछूंगी कि तुम मुझे मेरे बारे में बताओ, क्योंकि मैं मेरे बारे में ग्रंथ लिख सकती हूँ। उफ, So that's who I am. it is so beautiful. Lovely to know, Shraddha. So tell our viewers a little bit about your work, like your professional journey, जो भी आपने अभी तक ये जो 10 बुक्स की आप जो बात कर रहे हो, क्या शेयर करना चाहेंगी? देखिए 10 बुक्स तो हो गई, मतलब ऐसा तो नहीं था कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऑथर बनेंगे। बेसिकली रीडिंग वाज द बिगेस्ट हैबिट आई वुड से। बचपन से रीडिंग ही करी और उसके अलावा कुछ आता नहीं था। और रीड करते 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 क्या होता है ना, दिमाग अपने आप कहानियां बनाने लगता है। मैं आपसे बात करते करते इस एपिसोड के बाद पता नहीं कितनी कहानियां बनाऊंगी, कितनी कॉन्वर्सेशंस होंगी, आई कैन नॉट टेल दैट। Right. बट एट द सेम टाइम होता क्या है कि जब आपको लगे कि आपका काम पसंद किया जा रहा है, तब आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं पोट्रीज तो सालों साल लिखती थी, बट हुआ यूं कि जब लोगों ने पसंद किया, लोगों को अच्छा लगा, तो मुझे हिम्मत मिली। मैंने उनको लोगों के सामने लाना शुरू किया, एंड हिम्मत मिलने के बाद फिर ना वो नेवर एंडिंग सिलसिला होता है। पहली Right. किताब लोगों ने हाथों हाथ ली, तो इसीलिए 10वीं आपके सामने है। आई बेसिकली राइट डार्क, आई डू नॉट राइट हैप्पी एंडिंग्स। मैंने 2 बहुत रोमांटिक नॉवेल्स लिखे हैं, and दोनों में कैरेक्टर्स आर नेवर टुगेदर। हमेशा मतलब अलग करवा दिया आपने। क्यों ऐसा कुछ ऐसा क्या विरह है, मतलब आपकी खुद की कोई ऐसी कहानी है कि आप कैरेक्टर्स को मिलने नहीं देते? मेरी कोई ऐसी कहानी नहीं है, पर आप मुझे कोई ऐसी कहानी दे दें जहाँ 2 प्यार वाले साथ में हो और खुश हों। 2 प्यार करने वाले, प्यार करो, शादी करो, फिर दुखी हो जाते हो। एक बार शादी हुई उसके बाद दुख स्टार्ट। सबसे पहले वाला जो झरोखा होता है बेडरूम में, वहां से सबसे पहले बाहर क्या निकलता है? प्यार। राइट। शादी करने के बाद क्या होता है? तुम 10 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी करो और 6 महीने में तुम बदल गए हो। सही बात है। तो माई पॉइंट, एंड मैंने शादी वादी कराई ही नहीं है मेरे कैरेक्टर्स की। मैं इतना ज्यादा झंझट में जो पागल खुद जिंदगी भर झेला हो, दूसरों को क्यों देना है? सो बेसिक आइडिया इज दैट जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल ऊपर से मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं। देयर शुड बी सम पीपल हु शुड बी रेडी टू फेस दैट दिस इज द डार्क थिंग, एंड ये भी हो सकता है। The reality of life is somewhere the dark phase Dark only, एंड ग्रे, and the gray part. ग्रे, आई डू नॉट इवन राइट इंटायर ब्लैक, बट यस देयर आर पीपल हु से कि तुम रेप्स के बारे में बात मत करो, बट रेप हो रहे हैं तो बात तो करनी पड़ेगी। सही बात है। बात करेंगे तभी तो चेंजेस आएंगे। सो माय राइटिंग इज मोर और लेस जो सोसाइटी में हो रहा है, जो सही है। चीजें हम फेस कर रहे हैं एज विमेन, हमको कितने चैलेंजेस। मेरी लेटेस्ट बुक जो है दैट इज अबाउट दिस ओनली, दैट हम शादी करके आते हैं तो कितना एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि लड़की शादी करके आएगी। हम्म। कितना अनयूजुअल होगा कि हम ये कहें कि मेरा पति मैं शादी करके घर लाऊंगी। पहले तो मेरी माँ ही मना कर देगी। ये कैसे स्टूपिड थॉट है? बट मेरा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? राइट। क्यों नहीं हो सकता? एंड बीइंग अ राइटर, ऑथर, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत एक आपकी एक सोच ही चैलेंजिंग होनी चाहिए, नो, टू चैलेंज द एंटायर रूटीन, जो एक थॉट प्रोसेस है उसको अगर आप चैलेंज कर सकें तो वहीं से कहीं ना कहीं एक नया आइडिया। एग्जैक्टली। सो श्रद्धा, टेल मी, ऐसा कौन सा आपका काम है जो आपके दिल के बहुत करीब है? तो वो बात पूछनी है कि दोनों बच्चों में फेवरेट कौन सा है, ऐसा तो जवाब वो तो वही वाली बात है। बट फिर भी मतलब जिसको आपने लिखा हो और उसके बाद आपको लगा वाओ श्रद्धा, दिस इज डन बाय यू, वो फीलिंग कब आई थी? तो ऐसे 2 काम है मेरे। एक मेरी पहली नॉवेल अ ब्यूटीफुल मेस, ओके। वो लिखने के बाद मतलब मैं रीड कर करके रो रही थी कि मैंने कैसे कर दिया ये। एंड सेकंड वाज दिस लेटेस्ट बुक व्हिच इज रिलीज, सप्तमोक्ष। राइट। यहाँ पे व्हेन आई आई वाज स्लीपिंग, यू पीपल थिंक कि कैसे करते होंगे लिखने वाले, कोई ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होता। आई वाज स्लीपिंग एंड मैं डेथ पे काफी सालों से काम कर रही हूँ, 3-4 साल से डेथ पे बहुत सारा काम किया। तो मुझे एक थॉट आया कि जो मैं बुक लिख रही हूँ अबाउट अ वुमेन्स जर्नी, व्हाई नॉट आई किल द वुमेन इन द बिगिनिंग ओनली। और टेक्निकली आप साइंस को देखिए तो साइंस ये कहता है कि मरने के बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो 7 मिनट तक जीवित रहता है। राइट। तो दिस वुमेन हैज डाइड और उसका ब्रेन लास्ट 7 मिनट्स में अपनी पूरी जर्नी को 7 डिफरेंट कैंटोज में याद कर रहा है। So this, when I came up with this and when I Wow. put that on piece, I was like, What was the name of the book? Can you the repeat? book's name is Saptamoksh, the 7 movements of liberation. Saptamoksh. To my viewers, definitely read this book. Thank you so much. Sounds really very interesting. Superb. Like, जहाँ पता नहीं आप कहाँ से ऐसी चीजें सोचते हो। शुरू के वो 7 मिनट जो है ब्रेन एक्टिव रहता है, एंड पूरी स्टोरी आपने जो है उन 7 मिनट में लिख दी। जी। पूरी बुक उस 7 मिनट पे। जी बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थॉट प्रोसेस, मतलब आपका मोस्ट थॉट प्रोसेस कब एक्टिव होता है? रात के टाइम, सुबह के टाइम? ये विचार आते कैसे हैं? पूरा दिन पूरा दिन चलता आतंकवादी दिमाग है मेरा। है? 24 घंटे AK-47 चलता रहता है। आई एम टेलिंग यू, मेरे आसपास के लोगों को पता है कि ये मोबाइल पे बोल रही है, मतलब इसके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है। चलते चलते कल की ही बात है, कल मुझे लगा कि यार हर नए बंदे को पीछे बिठा रहे हैं। तो आई केम अप विद एन आइडिया, यार नए लोगों को आगे बिठाओ। मैंने वो देखा है आपका रील जो आपने शेयर किया। तो बस वही सब है, वहीं से आइडियाज आते हैं। एंड आई रीड अ लॉट। राइट। रात को 2 घंटे रीड करना इज अ मैंडेटरी थिंग। तो अच्छे से खाना पीना खिला करके सो जाती हूँ, तो वो प्रोडक्ट ढंग का बाहर आता है, ऐसे कह सकते हैं। सही है। बहुत ही खूबसूरत श्रद्धा, आपने अपना ये एक नजरिया जो है शेयर किया। एंड मैं जानना चाहूंगी कि ये तो हुआ कि आप लिखती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत हर जगह आप कहीं ना कोई कहानी ढूंढ लेती हैं। उसके अलावा आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या हॉबीज हैं श्रद्धा? और क्या पसंद करती हैं करना? खाने पीने का शौक है? खाना बनाने का शौक है? बहुत बहुत खाना बनाना, मतलब मुझसे अगर मैं किसी से भी प्यार करती हूँ, किसी से भी, तो मुझे एक ही चीज आती है, मैं उसके लिए कुछ बना सकती हूँ। वाह। एंड पीपल से आई एम अ गुड कुक। अहमदाबाद में मेरे जितना अच्छा नॉनवेज कोई नहीं बना पाएगा, ये भी मैं वाउच कर सकती हूँ। व्हाट अ कॉन्फिडेंस। आई लव टू कुक, आई लव टू लुक ब्यूटीफुल। और हमने सुना है कि श्रद्धा रमानी जो हैं, उनका साड़ीज का कलेक्शन जो है वो देखने जैसा है। श्रद्धा जी, कितनी साड़ियां हैं आपके पास? देखिए, लास्ट काउंट किया था हमने 1 महीना पहले, तब 960 साड़ीज थी। उसके बाद बनारस से हमने करीबन 25 करीब लाए हैं, तो आप 1000 के आसपास वाह, होंगी। क्या बात है। जितनी खूबसूरत ये है, उतना ही खूबसूरत जो है इनके इंटरेस्ट हैं। कलेक्शन ऑफ साड़ीज, लाइक मोर देन 1000 साड़ीज। हाउ डू यू प्रिजर्व देम? वेयर डू यू कीप? मतलब हस्बैंड के सारे कबर्ड्स मेरे हैं, बच्चों के सारे कबर्ड्स मेरे हैं। बेटा जिस दिन हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा था, मैं कह रही थी जल्दी भरो, मुझे साड़ीज रखनी है। हर बेड में साड़ी है, मैं कंबल चादरें वादरें नहीं रखती। एंड मैं साड़ीज रिपीट नहीं करती हूँ जल्दी से। तो 365 डेज का रोटेशन चलता है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत काम वाली बात नहीं हो कि जरूरी है ये साड़ी पहनना। तो और मजा आता है, आपको क्या चाहिए, आप खुद मिरर में खड़े हो जाओ और आप अच्छे लगो, यार लाइफ ही बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, जिंदगी जीने का एक स्पार्क है जो आप में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप क्या बताएंगे व्यूअर्स को, टू द विमेन हु आर वाचिंग दिस एपिसोड टुडे, कि लाइफ में हॉबीज और शौक कल्टीवेट करने का क्या इंपॉर्टेंस है? जब हॉबीज नहीं है तो हम क्यों हैं? सही हम बात तो है। मशीन नहीं है ना, हम तो ह्यूमन है। और रेने डेस्कार्टे ने बहुत क्लियरली बोला है कि कॉजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो थिंक, क्या पसंद है तुम्हें? जैसे मुझे पसंद है बातें करना। मैं बहुत बेसुरी नहीं हूँ, पर मैं बहुत अच्छा भी नहीं गाती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं गाऊंगी नहीं। राइट। एंड कहीं ना कहीं निमिषा जी, आप जो है पॉजिटिविटी की पुड़िया करके एक ये जो है अपना एक फेसबुक पे कुछ चैनल आप चलाते हो, वहां पे आप पॉजिटिविटी की बातें करते हैं। निमिषा भी बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी हॉबीज और अपने इंटरेस्ट को डेवलप करके रखती हैं। एंड आई एम अ कॉन्स्टेंट व्यूअर ऑफ दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर्स। सो श्रद्धा, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लाइफ में इंटरेस्ट और हॉबीज नहीं है तो जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ लव। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और टू द व्यूअर्स मैं ये बताना चाहूंगी कि श्रद्धा जी जो है, आपकी शादी, मैरिज बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। क्या आप बताएंगे व्यूअर्स को कि कब आपकी शादी हो गई थी? देखिए, ऑन रिकॉर्ड 19 बोलने की इजाजत है, तो 19 ही बोलूंगी। 19 पूरा था नहीं, ठीक है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट चलते हैं। मई में शादी हुई, सितंबर में पैदा हुई मैं, तो उस हिसाब से 19 का ही था। कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, बट शादी हो गई। एंड बहुत अचानक सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसा बोलते भी ना कि शादी, जहाँ एक औरत एक स्त्री की शादी हुई, इट्स एन एंड टू दैट लाइफ। जो पेटर्नल मैटरनल होम की जो जिंदगी थी, वहां एक एंड लग जाता है। कहीं ना कहीं स्त्री जो है एक नए आवरण में एक नई तरह की जिंदगी आगे स्टार्ट करती है। किसी की तो बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाती है और किसी की वहीं खत्म हो जाती है। आपने इतनी सारी पढ़ाई करी, मुझे नहीं पता कितनी डिग्रीज ये लेकर बैठी हुई हैं, तो ये इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, कहानी सिर्फ इतनी है कि खत्म हो जाती है इस फैक्ट, बट खुद को जिंदा भी खुद करना पड़ता है। राइट। मेरी एक ही शर्त थी जब मैं शादी हो रही थी, तो मेरी एक ही शर्त थी, मुझे पढ़ने दोगे? आई हैड आस्क्ड माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड एवरीबॉडी, पढ़ने दोगे?
दे वर लाइक अगर तुम पढ़ सकोगी तो फिर मैंने मन में तो सोचा हुआ था कि तुम्हें तो क्या पता है मैं क्या करने वाली हूँ. I did not stop for a day. Right. When 2005 I got married. This year I'll be completing 20 years of my marriage. I did my graduation. I did my 5 masters. I did my B.Ed with gold medal. I've completed my PhD. I've done a lot of certification courses. But I will study for another 15 years more. Oh. Another 15 years more because बच्चे से आप अगर खाना तब छीनिए जब वो सबसे ज्यादा भूखा हो. वाह, क्या बात बोली है कि बच्चे से खाना तब छीनिए जब वो सबसे ज्यादा भूखा हो. 18 was the age जब मुझे IPS IAS बनने की इच्छा थी. इतना पढ़ती थी मैं. तब शादी हो गई. Circumstantial चीजें तो क्या ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? It was a complete arranged marriage. तो इतना पढ़ाई मतलब शादी के बाद कॉन्स्टेंटली आप पढ़ती रही, आपने जो है अपने एजुकेशनल पोर्टफोलियो में एडिशंस करती रहे, उसके साथ साथ ये लिखने का एक जज्बा और एक ब्यूटीफुल बुक्स की सीरीज आपने लिखी. सो टू मच इनटू योर बास्केट आई वुड से. उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड. वाओ. 14 साल की थी. आई लॉस्ट माय डैड. तब मैंने पहली बार कमाना शुरू किया एंड मैं कभी रुकना नहीं चाहती थी. आई गॉट मैरिड इन अ वेरी वेल ऑफ फैमिली. बट मैंने बोला कि मैं अपनी साड़ी से लेकर के अपनी सैंडल का कोई भी खर्चा मैं किसी से नहीं ले सकती. एंड बिलीव मी, दीज मेनी इयर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव अर्न सो मच कि मैं देने के लिए तैयार हूँ बट मुझे चाहिए नहीं. तो बीइंग अ वुमेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शौक पालो लेकिन उनको खरीदने की हैसियत रखो. पति से मांग के डायमंड वाले में मुझे चमक कम लगती. क्या बात है. वाह, क्या जज्बा है. राइट. So that's what I feel. Very well said, Shraddha ji, that yes, financial independence is very important, especially you are a female. If you are a woman, then कहीं ना कहीं आपने जैसे बोला उस डायमंड की चमक ही अलग होती है जो खुद कमाया हुआ होता है. So in the last, I would ask you to tell, what would you like to tell to the aspiring writers and authors? उनको आप क्या advice या क्या टिप देना चाहोगे जो author बनना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं? देखिए, जो ऑथर बनना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी टिप मेरी ये होगी कि बी ओरिजिनल. किसी और को कॉपी मत करो. आर्टिस्ट का मतलब ही वो होता है कि जो आपके अंदर की आर्ट हो. जो फॉर्मूला XYZ के साथ फिक्स सेट हो गया वो जरूरी नहीं है आपके साथ सेट हो. और सबको थोड़ी शाहरुख खान की तरह बाहें खोलनी है. किसी को विकी कौशल की तरह मसान में नीचे बैठ के लकड़ियां भी चुननी है. क्या बात है. तभी तो जाकर के आपको विकी कौशल मिलेगा, वरना नहीं तो सारे शाहरुख खान के पीछे छुप जाएंगे. राइट. सो बी ओरिजिनल. बी ओरिजिनल एंड बी ऑनेस्ट. वेल. अपने काम के साथ जिसने भी ईमानदारी की है उसको मैंने कभी निराश होते नहीं देखा. राइट. खुद को तो जवाब देना है. और मुझे लगता है किसी से आप कोई गाइड नहीं पालिए, कोई काउंसलर की जरूरत नहीं है. आईने के सामने बैठिए और हाथ में किताब रखिए. जो मैंने किया, बुरा भी किया, हम सब बुरा करते हैं. हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छा महान हो. तो जो भी किया ना उसको लिख डालो. Right. So you'll remember, है ना? Yes, venting out. Salvation is what, like venting out whatever emotions, stuck emotions you have inside. Write them. And third and the most important thing I would say, that when I said to Ruchi that I am so much fascinated by death, I go to a lot of cremation centers and all. No, I see pyres of dead bodies burning. That is one thing which I enjoy the most. I enjoy because वहां पे मैं जितना सीखती हूँ उतना मैं पूरी जिंदगी में कभी नहीं सीख पाती हूँ. वहां से जो मैंने सीखा वो सबके लिए है कि जलना सिर्फ एक ही बार है. वो तब, अभी किसी को देख के मत जलो, किसी की सक्सेस से मत जलो, किसी और को आगे बढ़ाने के लिए या पीछे खींचने के लिए मत जलो, किसी की बात पे मत जलो. एक ही बार जलना. क्या बात है. वो भी तब कोई और आग लगाएगा. खुद को आग क्यों लगा रहे हैं हम. वाह. So beautiful thoughts and very well said. And I think श्रद्धा बहुत एक्टिव हो अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ बहुत ही करंट टॉपिक्स एंड जो भी आपको दिखता है करंट अफेयर्स, उन पे कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज देते हो. यू पुट अप योर पॉइंट ऑन योर सोशल मीडिया. कैसे, मतलब क्या इंटरनल क्या जज्बा रहता है कि जो आइडिया मुझे आ रहा है, अगर मैं किसी को कहूंगी तो जिन 4 लोगों के पास आइडिया है वो भी बोलेंगे. सही बात है. फॉलोअर चाहे 10 हो या 12,
अगर 4 ने भी सुन लिया और उनमें से किसी एक को भी बदल पाए, बहुत सुंदर, सक्सेसफुल है। मुझे 100 के फॉलोइंग का ड्रीम ही नहीं है। सही बात है। वेल, दैट वाज वेरी फैंटास्टिक, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल श्रद्धा रमानी। सो श्रद्धा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। मूविंग अहेड, निमिषा, आप एक एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपिस्ट हैं, हैप्पी बिज की मेंबर भी हैं, और पॉजिटिविटी की पुड़िया नाम से जो है आप कंटेंट क्रिएट करती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और बहुत से व्यूअर्स ने इनका वो कंटेंट देखा भी होगा। लेकिन पॉजिटिविटी की पुड़िया के बारे में बाद में बात करूंगी। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्यूप्रेशर और सुजोग दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, एक से हैं? क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस थेरेपी के पीछे? जैसे रुचि जी, एक्यूप्रेशर यानी कि कोई भी जो पॉइंट है प्रॉब्लम का, उसके ऊपर हमको हाथ या कुछ हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे प्रेशर देते हैं। और सुजोग उसका सिमिलर ही है, उसमें हम सीड थेरेपी करते हैं, जैसे मेथी दाना हो गया, अच्छा, उसी से हम एनर्जी लेते हैं और जो भी पार्ट का प्रॉब्लम है उसको हम हीलिंग देते हैं। ओके, सो बेसिकली एक्यूप्रेशर, सुजोग इज बोथ प्रेशर ओनली, कि देयर आर सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स on the body, so it's more like hand and feet. हैंड एंड फीट, पूरा हमारा जो बॉडी है वो जैसे काम करता है, सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे उंगली के 3 पार्ट्स है, तो बॉडी में भी ये हेड, ये चेस्ट और नीचे का पार्ट, ये तीनों पार्ट डिवाइड है इस उंगली के साथ। अच्छा, प्रेशर देके जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट देते हैं। इंटरेस्टिंग, क्या बात है। तो निमिषा, ये बताइए कि ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन डिजीज या बीमारियां हैं जिसमें सुजोग या एक्यूप्रेशर बहुत काम करता है? व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव? बेसिकली देखे तो पेन रिलीफ ये ट्रीटमेंट बोलते हैं। ज्यादातर जिसको भी इंस्टेंट पेन हुआ है या पुराना पेन है, उसमें ये थेरेपी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। फॉर एग्जांपल बैक पेन है, शोल्डर पेन है, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, नेक में पेन आ जाता है, तो ये बहुत कॉमन है। और माइग्रेन, इससे हम बहुत आसानी से इसकी ट्रीटमेंट करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। मतलब बेसिकली क्रॉनिक जो भी बीमारियां हैं उनका बहुत ही अच्छा एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है एक्यूप्रेशर एंड सुजोग थेरेपी। एक लेमैन जो पेशेंट है, जैसे मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है सुजोग या एक्यूप्रेशर में, मुझे बस इतना पता है कि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ऑल। तो कोई बीमारी है, मान लीजिए बैक पेन है किसी पेशेंट को, और वो आपको अप्रोच करे, तो एक टिपिकल सेशन कैसा रहता है एक्यूप्रेशर या सुजोग का? बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम करते हैं, अगर आपका पेन का प्रॉब्लम है तो हम पहले काम करते हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे, क्योंकि अच्छा। बेसिकली पेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही आता है। हाँ, कहीं ना कहीं वो पूरे बॉडी को भी बैलेंस बना रहा है ना, इट्स मोर लाइक अ पिलर टू द बॉडी। और इसी पे हम पहले काम करते हैं, उस पे ट्रीटमेंट होती है, और फिर जो भी ऑर्गन उसके रिलेटेड प्रॉब्लम में है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है। ओके, तो बेसिकली स्पाइनल को ट्रीटमेंट, और साथ में अगर बैक पेन है तो बैक के लिए ट्रीटमेंट, ये दोनों टाइप पे हमारा फोकस रहता तो कितनी देर का एक सेशन होता है? है। अगर आप एक प्रॉब्लम लेके आए हो तो उसका मिनिमम 20 to 30 मिनट्स का सेशन रहता है। और अगर उसके साथ दूसरा भी कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल बीपी भी है आपको, थायराइड भी है, तो उसके साथ उसकी भी ट्रीटमेंट होती है, तो 1 आवर का सेशन रहता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड मेजर मिसकंसेप्शंस क्या हैं एक्यूप्रेशर सुजोग के बारे में? लोग क्या धारणा रखते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा होता नहीं है? कई बार जैसे कैसे अधूरा ज्ञान, वो बहुत खतरनाक होता है। पूरा ज्ञान, ये टर्म मुझे अच्छी लगी। हाँ, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, राइट? तो कई बार सोशल मीडिया पे या किसी और से सुनने में आया है कि एक्यूप्रेशर में कोई जैसे खून निकालता है या सुई लगाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये एकदम जैसे कैसे निर्दोष थेरेपी है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, निर्दोष थेरेपी। श्रद्धा हंस रही है निर्दोष थेरेपी सुनकर। निर्दोष थेरेपी। और बाजू में जैसे ऑथर बैठा है ना, तो शब्द भी ऐसे ही निकल रहे हैं। हम सब थोड़ी देर में ऑथर राइटर बन जाएंगे, हैं? मेरी खुद की हिंदी इतनी क्लीन हो रही है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो।
और बेसिकली इसका ये है कि अगर एक बच्चा जन्मा है ना तो आप उसको भी ये थेरेपी दे सकते हो, इसका ये बेस्ट पॉइंट है। छोटे बच्चे को हाँ, छोटे बच्चे को मतलब किस तरीके की बीमारी में? अगर बहुत ज्यादा रो रहा है, उसके पेट में दर्द है, तो उसमें भी आप एक्यूप्रेशर थेरेपी दे करके उसको हील कर सकते हो। ग्रेट, दैट्स इंटरेस्टिंग। मेडिसिन फ्री थेरेपी है और इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो एक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना ऑल्टरनेटिव थेरेपी में एक बहुत ही इजी वे है एक्चुअली टू ओवरकम सच काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। निमिषा, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आपके इंटरेस्ट हॉबीज क्या हैं? हमें पता है कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो ये शौक आपका कहाँ से शुरू हुआ? वैसे तो मैं जब छोटी थी तब से गा रही हूँ, लेकिन तभी थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला और अभी जाके ये मेरा शौक मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की वज़ह से। उसने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तू ये कर, तुझे ये अच्छा लगता है तो तुझे ये करना ही चाहिए। एक सही लाइफ पार्टनर का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि आपका स्पाउस अगर आपको मोटिवेट करे, तो ये बहुत ही चाय में चाय पत्ती का काम करता है वो। चाय में चाय पत्ती का काम। अदरक क्या होती है चाय में? वो तो फ्लेवर डालेगी, बिना चाय पत्ती की चाय कैसी? हाँ। है कि नहीं? सही बात है। तो आप प्रोफेशनल लेवल पे भी गाने गाती हो, मैंने देखा है कि कुछ इवेंट्स वगैरह में आप परफॉर्म करते हो, कोई 2 लाइन गुनगुनाना चाहोगी? ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। जाने नहीं देगी रुचि अभी। अभी यही बैठे रहना है। बिल्कुल जाने नहीं देंगे, बट बहुत खूबसूरत गाती हैं आप। थैंक ब्यूटीफुल वॉइस। तो ये तो एक आपका टैलेंट हुआ, छुपा हुआ टैलेंट तो नहीं है, छुपा हुआ तो अब नहीं है, सबको पता चल गया है। एंड उसके साथ थोड़ा सा बताइए पॉजिटिविटी पुड़िया के बारे में, वो क्या है? यू। मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा था, कच्छ में पोस्टिंग था। 2.5 साल मैंने वहाँ पे वर्क किया, फैमिली सब यहाँ पर थी और कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा था कि वहाँ पे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो वो जो अंदर एक दर्द था ना, मेरा स्वभाव है कि किसी को बाहर बोलती नहीं हूँ, लेकिन वो अपने आप में इतना मैं 6 महीने अपने आप को बहुत सारा दर्द दिया। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि नहीं, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया और वहाँ से मैंने अपने आप को चेंज किया। ओके। फिर अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट लाया पहले और फिर जाके मैंने ऐसा सोचा कि देखो ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ की छोटी-छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और उसी बेस पे मैंने ये स्टार्ट किया हमारा पॉजिटिविटी की पुड़िया वाला चैनल। नाम बड़ा अच्छा रखा आपने, पॉजिटिविटी की पुड़िया। डॉक्टर जैसे आप इलाज करती हो, तो ये पुड़िया वाला मुझे जो है ना लेबल जो आपने दिया बड़ा अच्छा लगा। तो नाम आपने ही रखा था पॉजिटिविटी की? नहीं, मैंने ही रखा था। सही है यार। कलाकार हो भाई। तो कुछ ऐसी 2 टिप्स आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को कि लाइफ में पॉजिटिव कैसे रहें? क्या ज्ञान देना चाहोगी? डेली का हमारा जो रूटीन रहता है, उसमें मम्मियों को एक टिप्स ज़रूर दूँगी। टू ऑल द मदर्स एंड मॉम्स प्लीज। सुबह उठते ही हम स्कूल में जल्दी करो, लेट हो जाएगा, बस मिस हो जाएँगी, वैन आ जाएँगी, उसी के हिसाब से हड़बड़ी में हम ऑलरेडी लेट हो जाते हैं। इसकी वजह आप ये पूरा सेंटेंस ही चेंज करो कि अभी आपका टाइम स्कूल का हो गया है, तो प्लीज़ बेटा वेक अप। अगर आप शांति से उठाओगे, तो वो उठेगा ही। आपको स्टार्टिंग में टफ लगेगा क्योंकि ये इजी नहीं है। नींद है ना बहुत ही वो कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि ये मतलब माया है तो वो इजीली आपको नहीं छोड़ेगी। लेकिन हाँ, 21 डे आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको शांति से ही बच्चे को उठाना है। तो आप अपने आप को भी काम रखोगी, तो बाकी का पूरा जो सेशन है और बाकी के सब आपके जो भी घर के मेंबर्स हैं, वो भी शांति से ही काम हो। तो बेसिकली आपको जो वो जो सेल्फ टॉक है या बोलने का जो शब्दों का जो चयन है वो चेंज करना है ना पॉजिटिव वे, राइट? ओके। और दूसरा, कभी भी आप बाहर निकलते हो
ट्रैफिक में फंसे हो, आपको पहला ही थॉट आएगा कि अरे बाप रे, मर गए आज तो कितना। मैं तो सबसे ज्यादा परेशान होती हूँ जब मुझे पार्किंग नहीं मिलती. That is the most troublesome moment, right? तो उसके लिए आपको घर से निकलने से पहले ही आपको सोचना है कि आज मेरे वे में कहीं पे ट्रैफिक नहीं आएगा, मैं जहाँ पे पहुंचना है मैं इजीली पहुंच जाऊंगी. तो प्री कंडीशन योर माइंड. मैनिफेस्टेशन भी है और प्री कंडीशनिंग भी है. एंड दिस इज समटाइम्स आई ऑल्सो डू, राइट. कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि आप सुबह उठे, आप इरिटेटेड हो, तो यू नो यू कैन चेंज योर थॉट बाय चेंजिंग योर सेल्फ टॉक कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट ऑन दीज सिचुएशंस. मैं अपना इमोशन और अपना एंगर कंट्रोल रखूंगी. वो बड़ा इम्पोर्टेंट. Yes, very important. So beautiful and wonderful tips by Nimisha कि आप अपने दिन को कैसे positively आगे लेकर जा सकते हो. Well, we are wrapping with the round number 1 with very beautiful Shraddha and Nimisha. So moving ahead now with the very interesting rapid fire round, where I'm going to put up some very fast, quick, sassy, quirky questions to Shraddha, and let's see what she has to reply to these questions. This is also knowing more about Shraddha as a person. Shraddha, are you ready? I guess yes. So मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ rapid fire questions, and जहाँ पे आपको देने हैं कुछ quirky, sassy answers, 1 or 2 line answers. Let's see आप क्या सोचते हो इन questions के बारे में. ठीक है, अगर जिंदा रह गई तो जवाब आ जाएगा. नहीं, जिंदा तो जिंदगी तो आपकी बहुत लंबी है. So here is my first question to Shraddha. If your life were a book title, what would it be? जिंदगी. क्या बात है, very nice. Which literary character would you love to get stuck in a lift with and why? Mitch Albom of Tuesdays with Morrie, because तब मुझे अपने टीचर्स की कदर करना सीखूंगी मैं. क्या बात है. If you could ban one English word forever, what would it be? Why would I say that if I want to ban that? Tell me. The word, very famous word which starts with F. What would your autobiography not include? My autobiography will not have any filters. जो जैसे फेस किया है वैसे ही लिखूंगी. लोगों को बुरा लगे तो लगने दो. मुझे किसी ने सताया है, मैं लिखूंगी वो चुड़ैल. मैं नहीं बताऊंगी वो देवी है. Well, this is the very transparent and very upfront Shraddha. I like that. If poetry had a scent, what would your poems smell like? My poems would smell like jasmine. क्या बात है. पर हाँ, मैं कह सकती हूँ कि खुशबू एक किसी इम्पोर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपका महकना, अच्छा महकना बहुत जरूरी है. आपका किरदार भी महके और आप भी महको. उफ, किरदार भी महके और आप भी महके. क्या बात है. Describe Sunday in 3 exaggerated dramatic words. क्यों आते हो तो क्यों चले जाते हो तुम, और सिर्फ एक ही बार क्यों आते हो तुम. Your most bizarre writing spot ever. Don't tell me that was a toilet. That has always been the toilet. That has always been the toilet. And I must share one thing, that the moment I watched Uri, तब मैंने मेरी लाइफ की बेस्ट पोट्री क्रिएट की, बिकॉज इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था कि आई हैड टू रश टू द टॉयलेट आफ्टर द मूवी. घर वाले बाहर परेशान है और मैं अंदर कविता लिख के निकली थी 4 घंटे बाद. All great things happens in the restroom. Yes, because it is restroom. It is the restroom. Your mind also rests, right? A character from your book you would go take out on a coffee date. Anirban, he is the protagonist of my novel A Beautiful Mess. I create men who you fall in love with and never come out of that love. So Anirban. Your secret superpower besides writing and multitasking. My secret superpower? I am a good dancer. Is it? Very few people know. Well, that was astounding and very, very beautiful rapid fire round with Shraddha. Thank you. So, well, Nimisha, are you ready for the rapid fire round? Yes. Okay. Here is my first question, Nimisha, आपके लिए. If acupressure points had names, what would the I ate too many samosas point to be called? वैसे तो रुचि जी, बहुत सारे समोसे खाने ही नहीं चाहिए, वो ऑयली होते हैं, लेकिन कभी कभार खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं. उसके लिए हमारे पास एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. और उसके लिए आपको ये फर्स्ट फिंगर का मिडल पोर्शन, उसको ऐसे प्रेस करो.
ये पूरा पार्ट। ज्यादा समोसे खा लिए, ब्लोटिंग हुई, तो ये प्रेस करने का और फिर 4-5 समोसे और खा लें। मैं तो आज ही ट्राई करने वाली हूँ। Well, that was very interesting, Nimisha. Can you use acupressure to convince your husband to stop ignoring you? रुचि जी, ऐसा एक्यूप्रेशर में कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं खोल रही हूँ मेरी पॉजिटिविटी की पुड़िया। क्या बात है। तो जल्दी से बताओ। अगर आपको आपके हस्बैंड से कुछ भी कन्विंस करना है, तो उससे पहले आप अपनी माइंड को कन्विंस करो कि उसने मुझे हाँ बोल दिया है, और बाद में उसके पास जाओ, वो अपने आप ही हाँ बोल ही देगा, ये मेरी गारंटी है। पुअर हस्बैंड। To all the women. और हाँ, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप जो भी सोचते हो वो ही आपको मिलता है। तो ये तो आप 100% करना, और ये वर्क करता ही। ठीक है, सो हस्बैंड नहीं इग्नोर करेंगे। ऐसा तो नहीं 2-3 और अट्रैक्ट कर ले। Okay, moving ahead, Nimisha. If you could acupressure your way out of any awkward social situation, what point would you press? कई बार कई लोगों को सोशलाइजेशन में बहुत दिक्कत होती है, बहुत अच्छा नॉलेज होने के बावजूद वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि एंजाइटी है ना। Oh, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, और आप सब उसे यूज करना बिफोर आप, मतलब कहीं पे आपको बोलना है, स्पीच में जाना है, या कहीं कुछ भी एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए आपको ये लास्ट फिंगर है, वहां पे एक उंगली रखनी है, और उसके बाद में ये पॉइंट आएगा। तो मैं आपको एक, ये तो मुझे हर एपिसोड से पहले करना ही चाहिए। हाँ, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है कि जिनको भी कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम हो वो आपके पास आकर के कंसल्टेंसी लेने लगे। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, आप अपना बिजनेस चलाओ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये सही है, ये मैं पॉइंट आउट करके देती हूँ। तो मेरा क्या बचपन से दवाई हुआ है क्या? हाँ, हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट है। What is the most common complaint you hear? Stress? या फिर my partner snores louder than a Rajdhani train? यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सेकंड वाला। कराटे। कितना मुश्किल है ना। अभी तो तलाक होने लगे हैं खराटों की वजह से। और बहुत मुश्किल है कि कोई बहुत तेज खराटे लेता है, उसके साथ सोने में बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए तो आज अगर किसी का भी तलाक होने जा रहा है, तो वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। क्या बात है। कितने एक्यूप्रेशर पॉइंट है बताओ। तो उसके लिए ये आपकी हथेली है, उसका मिडिल पॉइंट है, उसको आपको नाक पे रखना है ऐसे, और जो आपकी मिडिल फिंगर आएगी वो यहाँ पे आएगी, ये वाला पॉइंट। अभी आपको इसको 30 सेकंड के लिए जोर से प्रेस करना है। इससे खराटे बंद हो जाते हैं। आपको दिन में इसको 3 बार करना है, सोने से पहले इसको खास करिए, और आप 15 दिन करेंगे, आप अपने आप में रियलाइज करेंगे कि आपका पार्टनर का खर्राटे बंद हो गए। Well, that is the cure for तेज खर्राटास, and acupressure में जो है इसका इलाज है। Okay, Nimisha, if acupressure had a theme song, what would it be? दम मारो दम, मिट जाए गम, करो शुभ शाम, एक्यूप्रेशर थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी। बहुत अच्छी ब्रांडिंग है, बहुत अच्छी। क्या जिंगल बनाया है इन्होंने। दूसरों के सामान से ब्रांडिंग करना। मैं तो सोचने लगी कि आप स्मोकिंग की प्रमोटर कर रही है, ब्रांड एम्बेसडर बन रही है। दम मारो दम, दम मारो दम मतलब प्रेशर, दम मारो दम। दम तो आप देना। ऐसे एक्शन में करना चाहिए था आपको दम। हाँ। Okay, well, अच्छी आपने अपनी ब्रांडिंग करी, वेरी नाइस। If you were a pressure point, which one would you be and why? आजकल का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक का, वो है स्ट्रेस। Oh, और अगर मुझे प्रेशर पॉइंट बनाया जाए, तो मैं स्ट्रेस का प्रेशर पॉइंट बनूंगी, और सबके लाइफ में से स्ट्रेस को निकाल दूंगी। well said, निमिषा, बहुत अच्छा थॉट है। Is there a special technique to relieve the tension of Monday mornings? उसमें मैं थोड़ा पॉजिटिविटी की पुड़िया खोलूंगी, और थोड़े प्रेशर पॉइंट भी आपको दूंगी। ये सिद्ध हो चुका है कि अगर आपने ये गूगल पे भी सर्च करोगे तो ये आएगा कि
कल रात से आज सुबह तक 1.5 लाख से 2 लाख लोग ने अपनी जिंदगी खो दी। तो क्या हम मंडे को जागे हैं तो हम लकी पर्सन नहीं है? तो ये ट्रूथ तो आपको ये समझना ही चाहिए कि अगर आपको मंडे मिला है तो आप दुनिया के लकीएस्ट पर्सन। राइट। तो ये तो थोड़ा सीरियस वाला आंसर हो गया मेरे रैपिड फायर राउंड में, बट हाँ बहुत गहरी बात बोली है आपने कि जीवन, लाइफ इज प्रेशियस। व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग यू हैव एवर हर्ड व्हाइल ट्राइंग टू फोकस ऑन एनी पेशेंट्स प्रेशर पॉइंट? कई बार पेशेंट, कोई नया पेशेंट आता है जिसको कुछ भी पता नहीं है और सिर्फ किसी ने बोला है कि ये बैक पेन ठीक कर देते हैं, आप जाओ, और आता है और मैं बोलती हूँ कि प्लीज अपना हाथ दीजिए। वो बोलते हैं मैम मुझे बैक में पेन है। मुझे पता है आपको बैक आप मेरा हाथ क्यों मांग रही हैं? मुझे बैक में पेन है। आप वहां पे कुछ नहीं करने वाले हो। That was very hilarious. So wonderful, Nimisha. You did fantastic job in the rapid fire round. So that was round number 2, rapid fire round with Shraddha and Nimisha. तो आगे बढ़ते हैं और अब हम खेलने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है जुगल बंदी। आप दोनों रेडी हैं? सो मेरे साथ एक ऑथर हैं और एक जो है एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हमने डिजाइन किया है, श्रद्धा एंड निमिषा, जिसका नाम है जुगलबंदी। आप यहाँ पर एक बॉक्स देख रहे हैं, इसमें कुछ चिट्स हैं, राइट? एंड श्रद्धा आप एक एक करके एक चिट निकालेंगी और उस चिट पे एक डिजीज या एक बीमारी का जो है नाम लिखा हुआ है एंड श्रद्धा कुछ फनी वे में उस बीमारी को, उस शब्द को जो है आपको नरेट करना है। इट कुड बी अ पोएम, इट कुड बी सम 2-3 लाइंस आपको उसके बारे में बोलनी है। एंड निमिषा आपको ध्यान से श्रद्धा की वो लाइन सुननी है और पता करना है, बताना है कि वो कौन सी बीमारी है और फिर उसके आगे जो भी आप शेयर करना चाहो, कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो उसे हील कर सकता है, जल्दी से आपको उसे वो बताना है। मतलब मेरा वाइवा हो रहा है और आप थ्योरी प्रिपेयर करके आए हो। हाँ, ऐसा कुछ आप मान सकते हो, राइट? नहीं वाइवा नहीं है, तो आपका टैलेंट है जो हम अपने व्यूअर्स को फैंटास्टिक शो के थ्रू दिखाना चाहते हैं। I hope I could do justice. So Shraddha, are you ready? Yep. So we can go ahead with the first chit. I'll go with odd one out. There is one already. इतने राज दबाए बैठा हूँ, इतने सारे राज दबाए बैठा हूँ मैं कि अब घुटन भी होती है और उल्टी भी नहीं आती। अरे बाप रे। श्रद्धा जी बात कर रहे हैं ब्लोटिंग की। कहीं जान। अगर आपको भी कभी भी इमोशनली या फिजिकली ब्लोटिंग है तो आपके लिए पॉइंट है, आपका जो पाम है उसके बीच में आपको। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी लाइन सुनने के लिए। 3 महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, 3 women sitting। पूरी जिंदगी सिवाय झुकने के करते नहीं हम कुछ, और झुकते झुकते शरीर के पैरों का एक हिस्सा कमजोर हो जाता है। यस डेफिनेटली। और ये है नी पेन। बिंगो। क्या बात है, घुटनों का दर्द, नी पेन। उसके लिए आपको यूज करना है आपके बीच वाले 2 फिंगर्स। अगर आपके राइट पैर में घुटनों में दर्द है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो लेफ्ट या राइट हैंड? हाँ नहीं, दोनों हाथ में आएंगे लेकिन आपको हाथ ऐसे रखना है। Okay. तो ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। अगर लेफ्ट पैर में घुटनों में दर्द है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है। सिमिलरली यहाँ पे आएगा। अगर आपने राइट हैंड लिया है तो ये आपका राइट लेग हुआ है और ये आपका लेफ्ट लेग है और ये वाला प्रेशर पॉइंट है दोनों में, ये घुटनों का पॉइंट है। सुपर। दैट्स इंटरेस्टिंग। हर बार थकने के बाद मुझे भी गले लगाने की जरूरत है, मैं भी थकने लगी। ऑफ कोर्स आपके कंधे। बिंगो। Frozen shoulders. Frozen shoulders. Wow, brilliant you are. Thank you. I'm the host of the show. I have to be brilliant. Oh yes. Yes, definitely. फिर से इसी आपको हाथ की पोजीशन ऐसे ही रखनी है। तो ये आपके पैर है तो ये 2 आपके हाथ हुए
और Oh. ये कंधा आपका है तो यहाँ पे आएगा ये प्रेशर पॉइंट। अगर आपको राइट हैंड में फ्रोजन शोल्डर में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आएगा, और लेफ्ट में है तो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली दो यही होगा, ये हाथ में ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो ये चल रहा है जुगलबंदी राउंड। जिंदगी के बोझ को ढह ढह करके पूरी तरीके से टूट रही हूँ मैं। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद सबसे ज्यादा सब कुछ उसी हिस्से पे आ टिका है। अरे ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है सभी वुमेन का, वो है बैक पेन। उफ। अरे मेरी कमर। तो उसके लिए आपको अपने हाथ को ऐसे उल्टा करना है, क्योंकि जैसे आगे का बॉडी तो आगे आएगा और पीछे का पार्ट है, बैक में पेन है तो ये पीछे आएगा। और उसके लिए 2 उंगली को सीधा करके ये जो लाइन पड़ती है ये पूरा आपको यहाँ पे प्रेशर देना है। ये पूरा बैक पेन का एरिया है। अगर आपके हाँ यहाँ पे, हाँ तो आप अक्सर यहाँ प्रेशर दीजिए और कमर दर्द को भगाइए। आज के सेशन के बाद मेरे शरीर की आधी व्याधि उपाधि सब खत्म होने वाली है। I turn minor inconveniences to Oscar-winning dramas. ओह, इट्स एंजाइटी। Yes. तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया इसमें 3 पॉइंट आएंगे और ये पॉइंट को बोलते ही है बुद्धास ट्रायंगल। क्या बात है, बुद्धास ट्रायंगल। जल्दी से बताओ। पेन लेकर आई हैं। हाँ, ये जो आपका ये पार्ट है और ये पार्ट है, उसके 2 उंगली नीचे रख के यहाँ पे आएगा ये। यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट है ये पूरा ट्रायंगल बन गया है। इसको आपको डेली दिन में 1 मिनट 3 बार प्रेस करना है। तो ये 3 पॉइंट आप प्रेस करिए और अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलीफ पाइए। वाह। वेल, सब कहते हैं कि हमारी सिर्फ आंखें बहती रहती हैं। नहीं, लेकिन उसके साथ हमारी नाक भी बहती है। Exactly. एंड स्पेशली अहमदाबाद की जो गर्मी है, आई थिंक एसी एंड एसी से फिर एकदम से गर्मी में जाना इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ रनिंग नोज। तो आपके साथ तो अक्सर होता होगा बिकॉज यू आर सो हॉट। मैंने निमिषा जी ने मुझे प्रेशर पॉइंट बता रखे हैं उसके लिए। that is smart. तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में पॉइंट है जो आपका ये नाक का लास्ट पार्ट है, यहाँ पे दोनों साइड आएंगे ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट। ओके, सो प्रेस हियर। हाँ, प्रेस हियर यहाँ पे, है ना। 1 मिनट आप प्रेस कर सकते हैं। फिर से अगर ज्यादा रनिंग नोज है तो फिर से आप 10 मिनट के बाद फिर से 1 मिनट को प्रेस करिए। इंटरेस्टिंग है। और ये सभी पॉइंट है, उसमें एक आपको ध्यान रखना है कि खाने के तुरंत बाद कोई भी पॉइंट को आपको प्रेशर नहीं देना है, उसके आधे घंटे बाद ही आप प्रेशर दे सकते हैं। वेल, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव निमिषा। रुचि, दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, ये हम लोगों के लिए है। हमेशा लोगों को हाँ ही बोलते रहते हैं हम, हाँ 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 हाँ। और उसके बाद क्या होता है निमिषा जी? उसके बाद आपको होगा नेक में पेन। सच बात है यार, दिल में तो होता है पर नेक में भी बहुत होता है। एंड टू द व्यूअर्स, आई टीच द आर्ट ऑफ सेइंग नो इन अ पोलाइट वे। ये मैंने मेरी ब्रांडिंग कर ली। और मैं बोल रही हूँ कर ली। उसके लिए आपको एक पेन की जरूरत पड़ेगी। उसको आपको, ये आपका थंब है, उसके पीछे वाला ये हिस्सा है, उसमें आपको रब करना है। कैसे करेंगे? ऐसे, रोलर की तरह। रोलर की तरह, है ना। तो जो भी नेक में पेन है वो आपका 10 मिनट। इसीलिए पेशेंट्स आपसे पूछते हैं निमिषा, पेन तो नेक में है, आप रोलर यहाँ क्यों करवा रहे हैं? सही है। और ये दोनों थंब में आप कर सकते हैं। ये नेक पेन का पॉइंट है। वेल, ये जुगलबंदी राउंड तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अब मैं इस बॉक्स में लास्ट चिट देख रही हूँ, एक लास्ट बीमारी जो है। श्रद्धा, आप निकालने वाले हो तो देखें क्या है वो बीमारी। लास्ट टास्क ऑफ द इवनिंग, द लास्ट बीमारी ऑफ दिस इवनिंग, आई वुड से। पर ये एक ऐसी बीमारी है जो पीछा ही नहीं छोड़ती। काम हो जाए तो भी, काम नहीं हो तो भी, सक्सेस हो तो भी वहां जाके बैठेगी, फेल्यूर है तो भी वहां जाके बैठेगा। क्या आप
हेडेक की बात कर रहे हो? बिल्कुल। मैं कईयों की जिंदगी का हेडेक हूँ, बट अभी मेरे हेडेक की बात करते हैं। तो उसके लिए आपको थंब को ऐसे रखना है, और अगर आपके साइड में पेन है तो आपको साइड में दबाना है। अगर आपके अच्छा, forehead पे सेंटर, pain है, तो देन सेंटर। हाँ, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है। और अगर आपके पीछे के पार्ट में पेन है तो आपको अंगूठा ऐसे करके, ये वाला पोर्शन है वहां पे आपको ऐसे रब करना है। देखो, सब बीमारियों के इलाज है निमिषा तो के। माइग्रेन है, सब हाफ पेन है, या कुछ भी सिर में दर्द है, तो ये तीनों पॉइंट आपको डेली दबाने ही चाहिए। अगर नहीं करना है ना पेन, तो भी दबाओ। अच्छा, मतलब पहले ही दबा लो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, गला दबाने की इच्छा हो तो कौन सा पॉइंट दबाए? इसमें गला दबाए बिना दब जाए। जनरल नॉलेज है। So that was very very funny and entertaining round, the जुगलबंदी round with श्रद्धा and निमिषा। बहुत मजा आया हमें ये गेम खेलकर आप दोनों के साथ। हमें भी बहुत मजा आया, थैंक यू। और आप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। So you. both of you are winners. थैंक यू, थैंक यू। Well, that was the very entertaining episode of the fantastic show, which is presented by Happy Biz and with my guests Shraddha and Nimisha. Thank you so much, Nimisha and Shraddha, for being on the show, taking out your time, and I hope we had together a wonderful time. So much, ma'am. Absolutely. So, Nimisha, आप कुछ बोलना चाहेंगे about Happy Biz? पिछले 2 साल से मैं रुचि जी से और हैप्पी बिज से जुड़ी हुई हूँ। जैसे लगता है कि मतलब हमारा दूसरा घर है। क्या बात है। क्योंकि यहाँ आके बहुत सारा नया नॉलेज सीखने को मिलता है। और हाँ, दूसरी जो हमारी एंटरप्रेन्योर लेडीज है, उससे भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। तो रुचि जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और मैं जितनी भी लेडीज है जो एंटरप्रेन्योर है, उसको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हैप्पी बीज के मेंबर बनो, और यहाँ पे आके हम सबके साथ हम जो एंजॉय कर रहे हैं और हम जो नॉलेज पा रहे हैं, वो आप भी पाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू निमिषा फॉर दीज वंडरफुल वर्ड्स। एंड कहीं ना कहीं ये जो वर्ड्स होते हैं हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपना काम आगे ले जाने में और आप हैप्पी बिज के लिए काम करते रहने में। श्रद्धा, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑन द शो, एंड having you on the show is our privilege, and we extend a lot of gratitude to you that you have taken out time for today's episode. Anything which I would say would be less, because the task you are doing, the way you are taking all these women together, and the community which you are creating is actually a much needed thing in this time, especially because you are working with women जिन्हें कोई नहीं सुनता, उन्हें आप सुनना सिखाते हो, उन्हें आप एक दूसरे से बात करना सिखाते हो। And I've attended one of your event. I've seen so much of confidence, talent, and the way you embrace everyone. आपका मैंने ये एक एटीट्यूड देखा है कि मैंने तो बहुत सारे लोग आपके साथ में देखे हैं, and I follow you on your all Instagram pages and everything, and I see that you take everybody together. एक comprehensive, एक diversity का environment है, but everybody is smiling. I've never seen any happy biz member not smiling, because broader smile वो पूरे 32 दांत के साथ में रहते हैं। So that is a beauty, and I also believe that fraternities like these are important, because आपको networking का opportunity मिलता है, at the same time आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं। बहुत सही। आपका दर्द वही समझेगा जो उस दर्द से गुजरा हो। तो सबको पता है कि women की लाइफ में challenges ज्यादा है, because आपने शादी की, बच्चे, but there is never an end. और रुचि, आपके लिए मैं एक मेरी ही लिखी 2 पंक्तियां जो है कहना चाहूंगी। यू आर सच अ पॉजिटिव वुमेन, कि तुम मेरे हिस्से की जमीन छीन कर तो देखो, तुम मेरे हिस्से की जमीन छीन कर तो देखो, मैं एक नया आसमान बनाने की जिद में हूँ। क्या बात है। वो केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए आसमान बना रही हैं। और मैं निमिषा जी बिलीव करती हूँ कि 7 आसमान वाला कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। 77 और 777 हमारे हैं, और उनमें कहीं हम अपना आसमान बनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू श्रद्धा जी। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं घर ले जा रही हूँ इनके द्वारा दी गई बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स और तारीफ। आज मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ ये सुनकर, ब्यूटीफुल लाइंस और ब्यूटीफुल शब्द जो हैं श्रद्धा जी ने जो बोले।
I'm extremely overwhelmed. So thank you so much for both of you for being on the show, the Fantastic Show. As we conclude this inspiring conversation, let us remember that words have the power to heal just as much as touch does. As Shraddha writes her truths and Nimisha eases our pain, let us all find our unique ways to express and heal in the journey of life. Stay fantastic.